Welcome, dear learners, in the same chapter, chapter number 5, Flags of the World. In our previous video, we haven't completed the whole chapter. Some paragraphs are remaining to completing. So, what we will do, we will complete the remaining parts. But before going to further, let's take a short revision that up to now what are the things we have learned from this chapter. So from this chapter the first page, as we know that there was a small boy Ketan. He was writing a letter to his grandma. केतन क्या थे, वो अपने ग्रैंडमा को एक लेटर लिख रहे थे. Why? Now he yesterday means last night he read a lovely book that adventure of famous people, and there he came to know that Neil Armstrong was the first man to walk on the moon and he raised the American flag on the moon. So if I ask you, अगर मैंने आपको पूछा कि that who was the first man to walk on the moon, तो आप क्या बताओगे? You have to say that Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Again, that another question is that he which flag did he raise on the moon. Now you that the answer is American flag. Okay. Another thing that he came to know, Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay were the first man to reach the top of the Mount Everest. वहाँ उसी बुक से उनको और सीखने के लिए मिला है, लर्न करने के लिए मिला है कि जो ये दो पर्सन थे, एडमंड हिलरी और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे, वो लोग क्या थे? फर्स्ट मैन थे जो रीच किया था, पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट के टॉप में. एंड दैट शेरपा हिलरी टुक मेनी फोटोग्राफ्स देयर ऑफ द सीनरी ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड शेरपा टेंजिंग वाज द फ्लैग्स वेविंग, वो भी वेविंग कर रहे थे फ्लैग्स ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशन एंड नेपाल. Now in the next page, he as he learned about the flag, so he was too eager to know more interesting things about the flags from his grandma. वो अपने दादी से और भी फ्लैग्स के बारे में जानना चाहते थे. तो इतना सा लिख के कैतन ने क्या किया, स्टॉप कर दिया अपना लेटर. फिर क्या है, ग्रैंडमा का लेटर स्टार्ट हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंडमा वाज वेरी हैप्पी. वो दादी जी बहुत खुश थे कि उनके जो पोता हैं, ग्रैंडसन है, वो फ्लैग्स के बारे में जानना चाहते थे. सो शी सेड दैट बेटा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर सो ईगर टू लर्न अबाउट द flags. So she shared some of the interesting things about the flags, like she shared that from about the that flag symbol of Japan, okay, then Tunisia, and then USA. Okay, if you read these paras, you will understand why why these flags are important for their country. Okay, now come to the next page, that remaining part. After that grandpa means as she shared his information to his grandson, so how he felt means केतन को कैसे लगा ये सब पढ़ के, ये भी ग्रैंडमा वापस जानना चाहते थे. So now you start this. Dear grandma, I loved your letter and the pictures you sent. मीन्स ग्रैंडमा ने जितने सारे सिंबल भेजे थे नेशनल फ्लैग्स के, वो केतन को बहुत पसंद आया. I went to our school library and out more about flags of the world. I was so surprised to know that shapes also have a special meaning in flags. यहाँ पे बता रहे हैं कि केतन क्या थे, उसकी स्कूल के लाइब्रेरी में गए और वहाँ पे फ्लैग्स के जो फ्लैग्स थे मीन्स फ्लैग्स थे, बुक थे, वो भी निकाले. और वहाँ को और क्या है, ही लर्न मोर फ्लैग्स अबाउट द वर्ल्ड. विश्व के और भी सारे बहुत फ्लैग्स होते हैं कंट्री में, उनके बारे में सीखने के लिए मिला. आई वॉज सो सरप्राइज, केतन बहुत सरप्राइज थे. क्यों? कि दैट शेप्स मीन्स उनके जो फ्लैग्स के जो आकार है वो भी बहुत स्पेशल मीनिंग्स को शो करते हैं फ्लैग्स में, है ना. आई फाउंड अ बुक ऑन फ्लैग्स विच सेड इन द olden days the cross only meant the different points of the campus. Campus means
दैट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। कैंपस आपने देखा होगा, आपके टीचर्स जो लोग एसएसटी पढ़ाते हैं वो लोग यूज करते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा है कि क्रॉस ओनली मीन द डिफरेंट पॉइंट्स करके वो शो करते हैं। ये ये मीन्स ये लोग ओल्डन डेज में यूज करते थे। नाउ द क्रॉस इज, सी द दिस symbol is for cross, okay, this symbol, okay. So now the cross is also a symbol of faith. Faith means faith means विश्वास, ओके, ट्रस्ट. सो द नेशनल फ्लैग ऑफ इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे दस एंड स्विट्जरलैंड हैव दिस सिंबल. सो ये जो क्रॉस सिंबल है ना, ये किन किन देशों में बिलोंग्स करते हैं ना, ये इंग्लैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में एंड स्विट्जरलैंड में, इस चारों देशों में ये क्या करते हैं ना, इनका शो करते हैं, ओके, ये रिलेट करते हैं, मीन्स इंटरेक्ट हैं. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन मम्मी पॉइंटेड आउट दैट द फ्लैग ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय रिवर्सिंग द कलर्स ऑफ द स्विस फ्लैग. अब क्या है, उनके ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थिंग थे, क्या थे, जब उनके मम्मी ने पॉइंटेड किया है कि जो क्रॉस, रेड क्रॉस वाज, ये वाला, सी दिस इज द रेड क्रॉस, ये एक्चुअली क्रिएटेड, ये क्या क्रिएट करते हैं, क्या सृष्टि कर ना, रिवर्सिंग. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिंग, मीन्स चेंजिंग टू द ऑपोजिट ऑफ समथिंग. कुछ चेंज, ऑपोजिट मीन्स विपरीत रूप से कोई चेंज करने के लिए, है ना. कलर्स ऑफ द स्विस फ्लैग, it has a red cross on a white background. Don't you think this would be confusing at times? क्या he was asking कि ये जो यहाँ पे देखो ये क्रॉस है ना, तो ये क्रॉस सिंबल किन किन देशों में बिलोंग्स करते हैं ना, इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड में. बट यहाँ पे क्या है, रेड क्रॉस है, तो आपको कभी ये कंफ्यूजन में नहीं लाते हैं क्या. ओके, आई ऑल्सो रीड टू वेरी इंटरेस्टिंग facts. Nepal has a triangular flag and the Swiss flag has a square shape. तो ये जो स्विस फ्लैग है ना, स्विस के ये भी एक स्विस फ्लैग है ना. तो ये क्या है, नेपाल के जो नेपाल जो देश है उनकी फ्लैग क्या है, किस तरह की ना, ये ट्रायंगुलर की तरह, एंड द स्विस फ्लैग इस तरह की उनके शेप होते हैं. मैनी कंट्रीज हैव फ्लैग्स रिप्रेजेंटिंग सम कल्चरल सिंबल्स. सो मैनी फ्लैग्स, मैनी कंट्रीज, एज आई सेड बिफोर, मैंने बताया आपको कि सभी कंट्रीज में उनके फ्लैग्स होते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं सम कल्चरल सिंबल, उनके जो कल्चरल होते हैं सिंबल उसमें शो करते हैं. लाइक द नेशनल बर्ड्स को लेके होते हैं, है ना, पक्षियों को लेके, और फ्लावर्स मीन्स फूलों से भी. द मैपल इज कनाडाज नेशनल ट्री एंड द कनाडियन फ्लैग शोज अ मैपल लीफ. ये जो दिस सिंबल, ये सिंबल कहाँ पे शो कर रहे हैं ना, कनाडा का फ्लैग. ये जो फ्लैग है ये कौन सी देश का है ना, कनाडा का है. ओके, डिड यू लाइक द इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स दैट आई हैव कलेक्टेड. वो अब केतन वाज सेंडिंग दिस pictures of flags to his grandma and he was asking that आपको ये जो पसंद, ये सब पिक्चर्स ये पसंद आई कि नहीं, और जो मैंने कलेक्टेड करके आपको सेंड किया है. मम्मी सेड आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ स्क्रैप बुक विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स. उनके केतन के जो मम्मी थे उन्होंने बोला था कि नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू कर दो, विथ अ स्क्रैप बुक मीन्स विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स को लिख के पेस्ट करके ये इंफॉर्मेशन लिखने में. ओके, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट फ्लैग्स व्हेन आई विजिट यू इन द समर हॉलीडेज. ही वाज आस्किंग दैट ग्रैंडमा, और भी ज़्यादा क्या
लर्न करना सीखना चाहती हूँ अबाउट फ्लैग्स के बारे में, जब मैं विजिट करूँगी आपको वो समर हॉलीडेज में। समर हॉलीडेज में हमको ऑलरेडी समर के टाइम, समर सीजन में हमको छुट्टी रहते हैं ना, तब हम कहाँ कहाँ जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, तो वो भी जाएंगे और उनके दादी माँ से और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अबाउट द फ्लैग्स के झंडे के बारे में। योर लविंग ग्रैंडसन, और इसको लिख के उन्होंने ख़त्म किया। ओके, so dear students, I hope you have understood about the chapter. What you will do, you read these both the videos, okay, with understanding, with help of this video, so you will learn more about it. And if you face any problem, you can contact me, you can call me. So thank you very much. Have a good day.